in from the national capital where the Congress is staging a huge protest over Nishikant Dubey because Priyanka Gandhi just earlier in the day had claimed that every single time Nishikant Dubey speaks with centre's permission and they don't allow Rahul Gandhi to speak in the parliament. So on that front, the Congress party is staging a protest in the national capital. There's a lot of hue and cry over Rahul Gandhi not being given time to speak in the parliament. There you can see this is the Congress protest, raising slogans, placards, and it's an entire confrontation that we're seeing between the Congress leaders as well as the police who are trying to stop these protests. Just a few moments back, we also heard Nishikant Dubey launching a pointed attack on Congress party, speaking about various books that show Indira Gandhi, the former Prime Minister of India, Sonia Gandhi, and several other tall Congress leaders like Nehru in bad light, and also about the alleged atrocities under their regime, like the emergency and much more. So Nishikant Dubey is now demanding a debate on all of those books that he pointed out and he showed and he referenced during his press conference, saying that if Rahul Gandhi wants to have a debate on an unpublished book, then there are so many publications against Indira Gandhi, Jawaharlal Nehru, Manmohan Singh and several others including Sonia Gandhi that must be debated. This is an all-out war between the Congress and the BJP that has now hit the streets with the Congress party workers staging a massive protest outside in the national capital. So these are live pictures coming in from Delhi. The Congress party led by Priyanka Gandhi and other tall leaders are staging a protest against the BJP and Nishikant Dubey in particular, saying that Nishikant Dubey along with the other BJP MPs do not let Rahul Gandhi his time to speak. And you can see on the left side of your screens, these are BJP protesters outside Congress headquarters who have been stopped by the police and barricades. And on the right side, there was a protest outside the parliament as well. And these are war of words after Rahul Gandhi straight a jibe at Ravneet Singh Bittu. These are the live pictures coming in from the national capital where the BJP is also protesting on various fronts. On one side, you have Nishikant Dubey's press conference attacking Rahul Gandhi over the books that he referenced, and now we have more reactions coming in. आप खुद ही देख रहे हैं कैसे जवाब देंगे, आप खुद ही सब देख रहे हैं। यहाँ तो राहुल गांधी माफी मांगे, यहाँ तो इस्तीफा दे दे, फिर यहाँ से हम खाली कर देंगे। इतने से इकट्ठे हुए हैं, कोई छोटी बात तो है नहीं। ट्रेटर बोला गया उनको, है ना, गद्दार बोला गया। जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बिट्टू जी को, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस पार्टी का बॉयकॉट कर देना चाहिए राहुल गांधी। हाँ बिल्कुल, बॉयकॉट ही है, पहले बॉयकॉट है। कहाँ है बताओ ना, कहाँ है ही नहीं, लाइन में नहीं। कोई नेता हो डंका उसकी बात करे, राहुल गांधी की बात करके टाइम ही खराब करते हैं। एक मुल्क पता नहीं किसने, कांग्रेस ने उसको नेता बनाया हुआ है। बात करो किसी ढंके बंदे की, ये तो है ही पागल। पागल की बात करने आए हैं हम, और इसको तो हटा देना चाहिए। और एक बात बता दूं मैं, जिन्होंने सिखों के साथ गद्दारी की है, इन्होंने गलत बोला किसी ने भी सिखों के साथ, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। पागल है यार, बोलता रहो पागल है, कांग्रेस पागल हो गई है, इनका दिमाग खराब है, अभी इनका पाला पड़ा नहीं है। सिख अपने जो अपने उसका बदला लेना निकलता है ना। The live showdown that's happening in the national capital, viewers, the BJP is taking out an all-out protest against Rahul Gandhi over his traitor remark against Ravneet Singh Bittu. And now the situation has snowballed into an all-out protest against the Congress party and Rahul Gandhi outside the Congress headquarters in Delhi. So there you can see the protesters trying to breach the barricades in their show of anger and outrage against Rahul Gandhi's statements, but the police have barricaded and stopped them.
लीडर अपोजिशन की गद्दी छोड़ देनी चाहिए और साथ में कांग्रेस भी छोड़ देनी चाहिए और घर बैठना चाहिए जाके। बार बार कांग्रेस पार्टी अपमान करते हैं, आदत हो गई है क्या? ये तो उनकी आदत है, आप देख ही रहे हो। 1984 से देख रहे हो, आज तक अपमान करते हैं। उनकी मानसिकता में बसी हुई है ये बात। आज तक उनको अपनी मानसिकता ठीक कर नहीं पाए हैं, तो अगर नहीं ठीक करेंगे तो आगे भी उनका यही हाल होता रहेगा जो आज तक होता है। तो इसलिए हमारी सलाह तो उनको यही है कि या तो माफी मांगे या फिर अपनी गद्दी छोड़ दें। मेरा नाम कवलजीत सिंह है। मेरा नाम कवलजीत है जी। राहुल गांधी ऐसी बातें करते हैं, क्या आप लोगों को ऐसा कितना बुरा लगता है? राहुल गांधी को खुद शीशे पे खड़े होकर अपने आप को देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये वो पार्टी है जिसने दिल्ली के अंदर एक विधवा कॉलोनी दी। ये वो पार्टी है जिसने जगदीश टाइटलर दिया। ये वो पार्टी है जिसने सिखों के गलों में टायर डाल डाल के जलाया। वो बोल रहे हैं गद्दार कौम के लिए। वो भी आने वाले समय में भरपूर जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी तेरी उल्टी गिनती शुरू होगी। हमारा एक ही कहना है, सिख सरदार है, राहुल गांधी गद्दार है। आतंकवादी आतंकवादी राहुल गांधी डूब रहा है। राहुल गांधी मुर्दाबाद। राहुल गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी जॉर्ज टाइटलर का यार है, जिसके लिए बिट्टू गद्दार है, ऐसे राहुल गांधी को हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी तुम गद्दार हो। टाइटलर का यार देश का गद्दार है। टाइटलर का यार देश का गद्दार है। वो टाइटलर के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं और बिट्टू को गद्दार टाइटलर का यार है, वो देश का गद्दार है। कोई बात नहीं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। हम कांग्रेस का भी घेराव करेंगे, राहुल गांधी का भी घेराव करेंगे। राहुल गांधी को इस्तीफा देना होगा। सीधी सीधी बात है, सिखों के प्रति जो नफरत कांग्रेस के मन में है वो फूट फूट कर निकलती है। Well, this is a hatred against Sikhs which keep propping up, and there's a DNA of the Congress which keeps compelling them to say what they say about Sikhs. There are other party leaders who have left the party. They have not uttered a word against them. It is Sushmita Seth who joined TMC. It is Shaku who joined NCP. But not a word of Gaddar against them. Why Bittu is Gaddar? We are going to protest. Today we are caught in arrest. We will continue protesting. Well, Rahul Gandhi will have to resign and will have to apologize to Sikhs. राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, अभी तक आपको डिटेन किया जा रहा है यहाँ से। राहुल गांधी को माफी भी मांगनी होगी, राहुल गांधी को इस्तीफा भी देना होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने उस सिख कौम को गाली दी है जिस सिख कौम पे हर हिंदुस्तानी गर्व करता है। राहुल गांधी का बयान जब जब विदेश में जाते हैं वो विदेशी ताकतों के हाथ में खेलते हैं और राहुल गांधी का हर बयान देश को तोड़ने वाला बयान होता है। हम कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में खेलते हैं। जब जब विदेश जाते हैं उनका जो भी बयान आता है वो देश की अखंडता और सुरक्षा को चुनौती देता हुआ आता है। तो आज भी जो बयान दिया है राहुल गांधी ने वो देश के खिलाफ दिया है, उस सिख कौम के खिलाफ दिया है। आज जो राहुल गांधी ने टिप्पणी करी है रमेश बिट्टू को लेकर, देश का गद्दार तो उसकी फैमिली है, उसकी दादी है, खुद राजीव गांधी और राहुल गांधी है। मैं ये कहना चाहूंगा राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए जल्द से जल्द। और यही प्रदर्शन रेगुलर निरंतर चलता रहेगा जब तक माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांगे राहुल गांधी। रवाना हो चुकी है और चलो भाई हो गया।
यहीं से बीच बोलूंगा ये वाले। देश के दुश्मन जब आप लोग खड़े थे धरने पर बैठे सांसदों के साथ, किस तरह से रिएक्ट करेंगे? आ रही गाड़ी भाई? आ रही है। You got cake on your foot, Renu. जितनी देर तो मैं आपके साथ था बहुत अच्छा था, क्योंकि आपके आगे सब जैसे आपके बाकी लीडर हैं, हम भी आपको ये लगता था भी ये तो हमारी फसल है। अब जब मैं बीजेपी में आ गया तो अब सब कुछ मुझे आपको खराब लगने लग गया। चलो वो बात अलग है, बट आप ये कैसे कह सकते हो, किस ताकत से कह सकते हो और मेरे से हाथ मिलाओ और आप यहीं आओगे वापस? तो जब मैंने आगे से मुंह तोड़ दिया, यहां तक नहीं, आप वीडियो में देखिए, या मतलब उसके बाद वो मेरे से आगे मारपीट तक बढ़ना चाह रहे थे। उनको वीनू गोपाल ने रोका, आप देखो वीडियो में। उसके बाद सुखी रंधावा है, उन्होंने कंधों पे उसके हाथ रख के रोका। उन्होंने कहा मेरे से किसी की हिम्मत कैसे हो गई? भाई मेरे सिर पे पगड़ी है गुरु की, हम पंजाब के हैं, तेरे सामने कैसे झुक सकता है कोई? और तू जो कुछ मर्जी कहोगे आप, तो फिर कहोगे भी हाथ मिलाओ। अरे वाह राहुल जी, हाथ मिलाता है मेरी जुत्ती। तो पीछे तक भी जाने की कोशिश की तो उनको उनके एमपीओ ने रोका, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। पार्लियामेंट में एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो एक सिख सरदार को गद्दार कहना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बड़ा शर्मसार करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, ये बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की, जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। मैं बताना चाहता हूं, आपने ये जो पाप किया है, ये सिखों की तौहीन की है, ये सिखों के प्रति अपशब्द बोले हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं, लोकसभा के तुरंत राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, इतनी गंदी टिप्पणियों का इस्तेमाल करना, उनके प्रति इस तरह की अपने मन में भावना रखना, अपने मन में उनके प्रति इस तरह का द्वेष रखना, यह स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। जो 1980 के दशक में सिखों के प्रति जहर था इनके मन में, आज भी वही जहर पनप रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए स्पीकर साहब को। कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पे रुकावट डाल रही है, बट आज पार्लियामेंट के बाहर जब हमारे कॉलीग और बीजेपी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी वहां से गुजर रहे थे, जहां पे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और उनके साथी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां पे जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। वो अंग्रेजी शब्द है, उसको आरपी जी ने हिंदी की उसकी ट्रांसलेशन बनाई गद्दार। पर आरपी जी, मैं माफी चाहता हूं, मुझे लगता है कि जो ट्रांसलेशन में ये पूरा जो नुआंस और सेंटिमेंट है और अर्थ है शब्द का, वो खो जाता है। अंग्रेजी में बोल रहे थे, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ट्रेटर। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी स्पाइज होते हैं, कहते हैं ट्रेटर टू द नेशन, जिसने नेशन को सेल आउट किया या सीक्रेट्स लिए या और कुछ किया। तो ये शब्द लाइटली नहीं लेना चाहिए।